we'll shut the fuck up. We'll put our head down and we'll only do one. Everything Fiverr, top-rated video editor, while you're doing podcasts with celebrities, 40,000 rupees. Small amount, enough, plus. I have a question. Do you think you're doing too many things? One thing I realized over the course of doing this for a very long time is एक चीज कर. You understand Hindi? Yeah. एक चीज कर but ढंग से. मेरी मम्मी बोलती है. Yeah. My mom always say like do one thing but do it nicely. Why you want to do 5 things? Why you want to be a Fiverr top-rated video editor while you're doing podcasts with celebrity interview, while you're trying to become a video editor, while you are also doing this UGC mod? Like, too many things. Let's do one thing. And we'll do one thing for the next 1 year. And we'll shut the fuck up. We'll put our head down and we'll only do one. I've committed. And I'm gonna commit for the next one. I don't care how. Okay? And I'm just gonna go all in. That's one first approach. But you need to change mentally. Second thing is, I personally will never ever in a million years put my work on Fiverr. Tell you very simply, is because it's the race to the bottom. I don't come to Fiverr to look for high quality editors. I will never. I'll come to Fiverr to look for 250 रुपए में मेरी 10 मिनट की वीडियो कौन एडिट करते रहे हैं. Even if you are the top rated editor, you are essentially killing. Like, you imagine you're trying to sell an iPhone in a tier 3 country, in a tier 3 city. They want you tell them I am the best. You pick iPhone is the best iPhone in the world to ever exist on the planet of the history, and not buy it because they don't have the money, budget, or intent to buy the iPhone in tier 3. Where will they buy it? They'll buy it in Mumbai, Bangalore, Hyderabad, right? Pune. So where does Apple come and set up their first store? In high intent places. Mumbai. Why does Apple not go like, okay, I'll put in Dagapura? क्यों? They know वहाँ पे मेरा नहीं बिक रही हो. Similar. If you want to be able to sell high ticket videos, you want to exist in places where there are people who would like to buy it. What are those goals? First and foremost is Twitter. That should be a main goal. Talking about editing all the time on Twitter. Posting what you do on Twitter. Talking about breaking down what you did, how you did on Twitter. You've seen my content. Anybody follows me on Twitter? Yeah? Yes. What do I talk about all the time? Content. I'll talk about creator economy में क्या चल रहा है. I'll talk about how to make better videos. I'll talk about why podcasts are dying. I'll talk about everything and everything related to content. And every now and then, मैं एक joke पा दूँगा. Every now and then, मैं शाहरुख खान के बारे में tweet कर दूँगा. That's for me to have fun. I want to shit post here and there. But when people see, they should be immediately be able to tell, ये बंदा ये करता है. Got it. Let me see his content. इसके content में काफी insight है, which means clearly he knows what he's doing. Let me talk to him about my problem. See, most of the people don't know why they want editing. They don't understand it. They will never understand it. When you go to, let's say, a contractor or somebody, तो उनको क्या बोलता है? भाई घर बनाना है. When you go to Fiverr, वो लोग तेरे से आगे मिलेंगे, ये ईंट रखनी है. It's one of the podcasts that I did on FBF when I talked about if अगर मुझे बैनर बनवाना है and मुझे पता है वो बैनर से मेरा सेल्स आएगा और मैं बैनर के लिए कम पैसे दूंगा क्योंकि मैंने सोचा है, मेरा आइडिया है, मेरी थिंकिंग है. But you come to me and be like, you want money? I'll be able to solve it to you by adding a banner. You thought it. Your thinking process. You are solving the problem for me. That's why money is gonna be bigger. Got what I'm saying? So when they're gonna be looking for it, they're gonna be like, hey bro, I'm trying to create content. I don't understand what's wrong with it. I don't understand why I'm not getting views. I see that you talk about content all the time. Can you help me with it? That's when you be like, I can. I run this. This is how much I charge. This is how much I will do for you. These are the deadlines. These are the brochures. These are this. These are that. And this is the cost breakdown when do you want to pay. They pay, you finish, you deliver. You do it 100 times over without fail. Why? Because trust in this current economy is the biggest leverage you can ever have. You came to AV, you paid how much? 40,000 rupees. Small amount? No. Why do you pay?
because there was trust. We saw that website पे लोगों को placements मिली है. You saw that after getting the some of your friends might have recommended the cohort to you. Yes. You saw कि मेरा दोस्त ने भी किया. मेरे दोस्त को direct result मिला है. There is enough trust in AV's brand to ask people to pay 40k. 40k in India is not a small amount. We deliver that trust. They put in our hearts and soul. Martin has fucking cried in front of me because there were instances that cohort would go wrong and we couldn't fathom that cohort could, like, we can't let cohort go wrong. We need to go out there, go crazy, do as much as we can for the people, because it might sound cringe, it might sound like chutiya bana raha, it might sound like fake, but believe it or not, we care for you like a motherfucker. Like, once we take that money, our game becomes like there is nothing. I should do anything and everything in my power to make sure this kid who has put his trust, instead of putting the trust in colleges, right? Instead of spending, he's like, listen, traditional route, I spent 4 years there. I spent मेरे मम्मी पापा का hard working money over there. I maybe become depressed over there, and there is a chance still I won't get money. I'm not gonna take that traditional route. I'm gonna put my money, my trust in you. That's what goes in my head, and I'm gonna make sure that you get it. That's the mindset I come from. Sounds cringe, sounds gay, sounds kind of chutiya bana raha hai. But if you don't have that mindset, it's not gonna work. So when tomorrow you get a client, and the moment money comes and you don't deliver, that means you're not fit to be in the industry. Every single time I've taken a client work, and if I've never been able to deliver it on time, I've sent the entire money back. I have a text from Carrie. Carrie ने मेरे को बोला था भाई तुमने time पे नहीं भेजा. He owed me some around 20k back then, 2016. I told him, if I'm not able to give it to you next time, you won't have to pay me for the next 2 months at all. We were on a retainer contract, and I made sure I put my neck on the line that I give it to him. And that's how I operate, and that's how you need to operate to build brand today. Content, trust, delivery, do it again for the rest of your life, and you'll be there. That's all you need to believe. And nothing, and no one thing. 5,000 चीजें करके किसी को फायदा नहीं मिलता है. When you unless you are at 10, तन में बट 5 चीजें कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो तन में बट है. तेरा नाम उधर पहुंचा दे जहाँ पे तेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है. उसके बाद एक और चीज कर, AV, I mean, it's gonna be our 5th cohort. Have you seen any other means of monetization on AV's channel? Brandings भी करते हैं क्या हम लोग उतनी? वो भी कभी कभी नहीं करेंगे हम लोग कभी. क्यों? क्योंकि अगर आप 4 चीजें करोगे तो आप मुंह के बल गिरोगे. जब तक मेरा ये कोहॉर्ट ऑटोमेशन पे नहीं पहुंच जाता, जब तक मेरे पास ऐसा नहीं हो कि मैं सो रहा हूँ और मेरे बच्चों को, यू गाइस, उनको वही रिजल्ट मिल रहा है जब मैं जिद के रात दिन काम कर रहा हूँ, तभी मैं कोई और चीज करने की सोचूंगा. मेरा खुद का ब्रांड है पापा ऑफिस. Everybody knows. Yes. I haven't posted a video in 1 year. Why? I can make money. I have the talent. I'm funny. थोड़ा सा अच्छा भी दिख लेता हूँ. But why am I not doing it? Because if I'm gonna be doing too many things, I'm gonna get distracted. Nothing. I can't charge 40k. I can't charge 40k if I'm not delivering. I don't know about you guys, but I'll kill myself. भाई मेरे को गिल्टी हो जाएगी कि मेरे को किसी बच्चे ने पैसे दिए, शायद अपने मम्मी पापा से लड़ा हो और पैसे दिए और मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ. मुझ पे लानत है, मेरी गलती, मैं करूँगा काम. That's the mindset that you need to have when you're operating a client. Agencies चलाने वाले होंगे तुम लोग कई सारे. That's a lot of you guys think कि एजेंसी में बहुत पैसा है. गलत सोचते हो मत करो, बात मान लो, कर चुका हूँ मैं. पर तुम लोग चलाओगे, तुम लोग का दिमाग क्या चलेगा? क्लाइंट को चूतिया बना देता हूँ, पैसे ले लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ. बहुत सारे लोग यही गलती करती है. बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं. ठीक, careers are not 1 year, 2 year, 4 year, 5 year. Careers right now are 40 years. Considering कि तुम 60 year पे रिटायर हो गए. पर जिस तरीके से, और in my opinion, अभी मैं थोड़ा sci-fi करने वाला हूँ, पर in my opinion जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन जा रही है, I don't think 60 की उम्र में हम लोग रिटायर होंगे. I think careers are gonna go for far longer. Which means what? Which means trust is everything. अगर तुमने अभी अपना ब्रांड खराब कर दिया तो तू हमेशा तेरा ब्रांड खराब रहेगा. We know a lot of these editors, a lot of these YouTubers, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जिन लोग के दिमाग में स्कैम, हाँ ये बंदा स्कैम है, इसके जगह पे प्लेस नहीं हो, इसके साथ काम नहीं करना है, इसके साथ नौकरी नहीं करनी है, इसने उसका पैसा नहीं दिया था, या इसने उसको इतना ही कम पैसा दे पाए, ब्रांड खराब हो गया उस बंदे का. तुम लोग जाओगे उसके साथ काम करने, क्लाइंट को भी पता चलेगा एट सम पॉइंट, वो भी नहीं जाए. ब्रांड सब कुछ है और वो सिर्फ ट्रस्ट से आता है, और ये ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है. 8 साल. तुम लोग को शायद कम लगे क्योंकि तुम्हारे पास राइट गाइडेंस है, पर वो ट्रस्ट बन गया ना, और टूटे नहीं टूटेगा. बड़ी बड़ी कंपनीज के पास वो लोग लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं अपनी PR पे. क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते. ट्रस्ट टूट गया तो सब खत्म. टाटा का ब्रांड है,
टाटा को सुनते ही तुम लोग ट्रस्ट करते हो, क्यों? टाटा मेक श्योर कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी कम्युनिटी वापस देखनी चाहिए। अब वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है मैं उसमें नहीं जाऊँगा, वो रियलिटी है फेक है वो उसमें मैं नहीं जाऊँ, पर वो लोग वो करते हैं और वो ही करना है। तो ट्विटर पे जा, कंटेंट बना कुत्ते जैसा, कुत्ते जैसा। एक ट्वीट करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। मैं तो लॉन्ग पोस्ट डालता हूँ भाई, वैल्यू वैल्यू इफेक्टिव, वैल्यू दे, कितना वैल्यू दे रहा है। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग, थ्रेड, ये सब पे मत सोच, वैल्यू कितना दे रहा है। वैल्यू देगा इट विल वर्क, छक मार के। इफ यू आर मेकिंग गुड वीडियोस इट विल वर्क, इफ यू आर अ गुड एडिटर इट विल वर्क। गिव वैल्यू एंड देन थिंक अबाउट क्या मुझे थ्रेड करना चाहिए, क्या मुझे लॉन्ग पोस्ट करने चाहिए, क्या मुझे ट्विटर पे वीडियो डालनी चाहिए, क्या मुझे, वो सब बाद में आता है, पहले वैल्यू। जैसे ही तूने वैल्यू दी है फिर वो मीन्स ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है। तू टेक्स्ट पे वैल्यू दे रहा है कि तू वीडियो पे वैल्यू दे रहा है वो मैटर करता ही नहीं है। वो तेरे को जैसे अभी क्या नाम है उसका, जेम्स क्लियर, बहुत बेहतरीन ऑथर है, वो वीडियो पे बना सकता है, ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे भी हैं, टीम हायर कर सकता है, एडिटर्स हायर कर सकता है, पर वो अभी भी खुद न्यूज़लेटर लिखता है। क्यों? क्यों बोलता है मेरे को आसान है, मेरे को आता है, मेरी हैबिट बन चुकी है, मैं रोज़ भेजता हूँ और मैं पिछले 10 साल से भेज रहा हूँ और मैं भेजते ही रहूँगा। वो उसका मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तेरा क्या होगा? मेरा वीडियो होगा तो वीडियो बहुत अच्छी बात है, तेरा राइटिंग है राइटिंग बहुत अच्छी बात है, तुझे एडिटिंग वाले वीडियोज़ डालने हैं वो डाल, वैल्यू दे, और जिस तरीके से देना है उस तरीके से दे। रोज़ 10-15 मिनट लगता है ट्विटर उस पर ट्वीट करने को, आधा घंटा लगेगा एक लंबी पोस्ट लिखने, चल 1 घंटा, दिन का 1 घंटा, हाईएस्ट ROI इन करंट डे। इफ यू स्पेंडिंग अ डे growing your Twitter, growing your LinkedIn, a day, one day, highest motherfucking ROI in the world right now. You will go from making 10,000 to 1 lakh within 1 year by just giving motherfucking value. हम सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को 10 मिनट की वीडियो बना दे, क्या लॉन्गर वीडियोस बहुत करती है, कि शॉर्ट्स बनाओ 30 सेकंड की वीडियोस बहुत करती है, वो कैसा होना चाहिए, ये कैसा वो कैसा, डजंट मैटर। कोई ये सोचता ही नहीं है कि बैचो मैं दे क्या रहा हूँ, मैं वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोग देखेंगे क्यों मुझे? क्योंकि मेरा हुक से नहीं, क्योंकि तू किस बारे में बात कर रहा है, क्या तेरे बात में दम है, और फिर तू उसके बाद आता है कि तू उस बात को बता कैसे रहा है। तेरी स्टोरी टेलिंग टेक्निक सच, मैं क्या बहुत दुनिया में बेस्ट स्टोरी टेलर थोड़ी हूँ कि बेंचो में नॉवेल राइटर से कम्पीट कर लूँ, नहीं, मेरी बात में दम है, ठीक है। मैं उसको स्टोरी टेलिंग के उसमें बता, अभी जो मैंने किया वो स्टोरी टेलिंग था, करेक्ट मैन, कुछ बहन महान आत्मा तो नहीं बन गया मैं, सिंपल बात है, भाषा में बात कर रहा हूँ तुमसे, अकला रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ। देखो ठीक ठाक स्टोरी टेलिंग है, बात में दम है, 4 लोग बैठ के शांति से सुन रहे हैं, वैल्यू। मैंने तुम्हें नहीं सोचा कि 10 tips that you will become the YouTuber of the world, कुछ नहीं बोला मैंने, सिंपल सीधी शब्द भाषा में बात करता हूँ, वैल्यू दो, सिंपल भाषा, वो वगैरह बाद में आता है, मैटर करता है, इट वर्क्स, बट पहले हम वैल्यू देंगे, जितनी वैल्यू दे सकते हैं उतनी वैल्यू देंगे, मरने तक वैल्यू देंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, फिर सोचेंगे कि हुक्स कैसे मैटर करते हैं, साइड बाय साइड, बेटर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत। लोगों को लगता है कि रेंचो अगर मैंने हुक्स मास्टर कर लिया ना, अब तो मैं प्यूरीफाई बन ही गया भाई, अब तो मिस्टर बीस्ट में आ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, तो पहले दम ले, मैंने वैल्यू दे। वैल्यू कैसे देगा? वैल्यू देने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। क्या हुआ है देखिए 23, बहुत टाइम है अभी तो लंबा गेम है, कहीं नहीं जा रहा कोई, लंबा गेम है, तो लेट्स लर्न एक्सपीरियंस। ट्वीट कर, कंटेंट बना साइड में, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर साइड बाय साइड जितना तू दुनिया से पहले कंज्यूम कर सकता है। लोग 8 साल लगे मुझे गांड घिसाई में, फिर मैं बोला कि अब मैं दुनिया को ज्ञान देता हूँ। 8 साल तक मैं मुंह के बल गिरा, लाइक आई डिडंट मेक लॉट्स ऑफ मनी, इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी एबल टू मेक क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, वेयर आई वाज बी लाइक ए रेड बुल, पैसा दे, मारूंगा तेरे को, where I was able to be like, hey Red Bull, give me money, hey Netflix, here's a guy I trained, you wanna work with him, right? The kids I trained way back are running companies, they are making lots of money, right? They are working with lots of people,
They're getting international clients. The kids I've trained are going to work with Ali Abdal now. It's good. Wait to Ayush again here. And take you much less. Why? Because one scene is mature now. The industry is much more mature. People are a lot more accepting. But second, it's also that you guys have the correct guidance. You guys know कि अभी मेरे को कल जाके ओके फोकस ने बोला है उस टाइम में 1 घंटा एक लंबा पोस्ट लिखना है, एक वीडियो बनानी है, भी वीडियो बनाया उसका मेरे को ट्विटर पे डालना है, पर यही करते रहना है आगे वाले 3 साल तक। ट्रस्ट बनाना है, उससे क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स को डिलीवर करना है, गांड घिसाई कर दी। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू गिव क्लाइंट्स। There's gonna be instances where client will want you to give on a very quick turnaround time. बहुत ज़्यादा वीडियो होगी, पैसे भी ज़्यादा होंगे। तुम सोचोगे गवर्न डिसाइड करके साल कर लेता हूँ, ठीक है, पर तुम बर्न आउट हो जाओगे। वो रिस्क मत लो। बी लाइक पैसा आ रहा है, ये काफ़ी पैसा है, लेट मी फाइंड अ पार्टनर, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द मनी। Maybe I got the client, so let's do 60-40, 70-30. What you guys will do, and this is something I have done as well. Experience से बता रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे कि नहीं भाई मैं चिल मारता हूँ, मैं सारा पैसा ले लूँगा, एक काम करता हूँ मैं इसको एक्सप्लॉइट कर दूँ, इसको बोलता हूँ मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपये आ रहे हैं, 5,000 इसको दे दूँगा, बाकी के मैं रख लूँगा। What कर? क्यों? सिंपल गेम, लॉन्ग टर्म खेलना है, सबको लॉन्ग टर्म खेलना है, 40 साल करियर्स। और अगर तुम यही परस्यू करोगे तो 40 साल के लिए तुम्हें इंडस्ट्री में एक नाम बनाना है। इंडस्ट्री में नाम खराब हो गया तो कोई राइटर तुम्हारे साथ वापस काम नहीं करेगा, तुम आयर नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा फाइंड पार्टनर्स हु कैन हेल्प यू डू दैट, गेट अ टीम अराउंड इट एंड ट्रीट देम वेल, ट्रीट देम वेल। ट्रांसपेरेंसी, भाई ये देख तू पार्टनर मैं पार्टनर दोनों साथ में मिलकर गांठ फाड़ काम करेंगे। बता दे अगर काम करना है तो साथ में, नहीं करना है तो भी बता दे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग कोई और ढूंढ लूँगा मैं। साथ में काम करते हैं, गांड फाड़ काम करते हैं, नाम बनाते हैं इंडस्ट्री में, वो नाम तुम्हारे पीछे आएगा ही आएगा। फिर तुमने वो क्लाइंट को दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कल को क्लाइंट वो वापस आएगा तुम्हारे पास, वो ट्रस्ट बन गया, उसको लगेगा वैसे इम्पॉसिबल टास्क कर दिया लॉन्डे ने, वापस कर दे। बोलेगा यार इम्पॉसिबल टास्क था, मैंने लास्ट टाइम इतने में कर दिया था, बट आई हैड टू हायर पीपल एज वेल, दिस टाइम आई हैव टू चार्ज दिस मच, I hope you understand. We'll be like fine भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टी भी रख रहा है, तो काम भी कर दे रहा है साथ में, मेरे को रिटर्न्स भी बढ़िया आ रहे हैं, कोई दिक्कत कर देता है। चलो वो बोलता है कि नहीं ब्रो इतने में ही मेरा बजट है, बोलता है चल ठीक है, बट नो इसके बदले में मेरे को एक और एक्स्ट्रा लीड ला के दे दे, तो चलेगा? बोलेगा चलेगा। नाम रिकमेंड करना है तो मेरे को काम करके देगा, कोई बात नहीं। Word of mouth is the strongest level of marketing. जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, अभी अगर कल को मैं बोल दूँ सुमन बहुत अच्छा एडिटर है, तो लोग सब लोग उससे पूछोगे भाई कैसे, क्या करता है तू, क्यों? वर्ड ऑफ माउथ। मैंने मेरा ट्रस्ट, जो तेरा ट्रस्ट मेरे में था, मैंने वो ट्रस्ट इसमें ट्रांसफ़र किया। जब मैं तुम लोग टीवी के एडिटर्स बनते हो तो क्या हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट किस में, मुझ में, मैंने वो ट्रस्ट उठा के सबको तुमको दिया। अब ये तुम्हारा जॉब है कि वो ट्रस्ट की मानी चोदनी कि भाई नहीं, आई विल वर्क हार्ड, आई विल डू वर्क लॉट्स ऑफ आई पुट इन द वर्क, आई पुट इन द एफर्ट, आई डू इट राइट। क्योंकि ओपस ने मेरे को अपना ट्रस्ट दिया, मेरे को जब कैरी ने ट्रस्ट दिया था उसका, एंड ही रिकमेंडेड मी टू अदर पीपल, आई मेड श्योर दैट कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि किसी और का ट्रस्ट एंड वी हैव टू ट्रीट इट विद नज़ाकत, वी हैव टू ट्रीट इट विद लाइक एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट। And which is something that I've noticed, I'm not saying in you guys, but I've noticed a lot of youngsters, that you need to treat this with absolute utmost respect, otherwise you're not making money in the long term for shit. You ain't gonna be making any money if you're not gonna be treating others with respect. The people put giving money with respect, then like अरे यार ये वैसा वाला client है, client तुझे पैसे दे रहा है, that's the transaction that needs to be had. वो तुझे पैसे दे रहा है, वो कैसा भी क्लाइंट हो, तुझे उसको सर्व करना है। और अगर तू उसको सर्व नहीं कर पा रहा है तो तुझे आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलना है सॉरी सर मैं नहीं कर पाया। यार these kind of editors don't like these kind of clients don't let me edit the way I want. That's not the transaction that you wanted in the first place. The transaction is not, and they'll pay you money and you will do whatever you want. The transaction is
They'll pay you money and you will solve their problems. You're not anything for yourself. You're in the service industry. You serve people. We serve our clients. That's very important. Once you've understood this, ये 8 साल का ज्ञान है जो मैं तुम्हारे सामने रख दिया. The moment you are able, brands आते हैं. Brands को अगर मैं इंटीग्रेशन करके दे दूँ ऐसे ही, जाओ लिंक इन डिस्क्रिप्शन से, वो पैसे दे देंगे क्योंकि उनकी लाइबिलिटी है, उनको देना ही पड़ेगा. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पर वो वापस नहीं आएगी. पर अगर तुम उनको बेनिफिट करा रहा है, फिर भी लाइक यार बंदा भी अच्छा है, पैसे भी ढंग से चार्ज करता है, मेरे को भी पैसे मिल रहे हैं, डालो पैसे, इतना डालना है डालो और डालते रहो. Then you will start seeing that people sign year-long deals with you. You will see people sign 2-year-long deals with you. You will see brands sign like multi-year-long period of contracts with you. All of a sudden, that trust starts paying off. Why? Because you are not constantly going out and being like, कि भाई किसी को काम चाहिए क्या? ओ भाई किसी को काम चाहिए? काम दे दो भाई. अरे तुम्हारे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हें बस यही करना है जो तुम हमेशा करते हो, सर्विस द मदरफकिंग क्लाइंट. I hope that cleared your questions I was going to ask also got cleared. Anyway, welcome भाई, बहुत खुशी हुई. और कुछ? Hey, I'm looking for an editor who will reply, yo bro, what's up? Here is my portfolio, www.www. वो आएगा तेरी प्रोफाइल पे यूज करेगा, देखेगा 1000 फॉलोअर्स. अरे वाह, एडिटर्स के पास तो 1000-2000 फॉलोअर्स नहीं होते. स्क्रॉल करेगा, देखेगा तू कंटेंट पोस्ट कर रहा है. अरे वाह, ये तो इनसाइट भी देता है. तू और स्क्रॉल करेगा, देखेगा कि तेरी वीडियो है जहाँ पे तूने एडिटिंग दिखा रखी है, उन्हें आएगा पोर्टफोलियो इधर ही है, मेरे को वो लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. वो तेरा देखेगा कि डीएम्स तेरे ओपन है, मैसेज पे टैप करेगा, बोलेगा ये ब्रो दिस दैट. Yeah, here is an example I'll show you guys. Come. When I open my Twitter, my things are always open. Okay, and I talk about my editing quote all the time. I tap. First thing I see is somebody verified. It's like, hey, listen, I'm trying to hire from your cohort. I'll be like, beautiful, give me your number. I'll connect you with my placement team. You guys are going to be recording that. Make sure you blur it. This happens again and again. Like, hey, listen, I'm looking for this editor, this kind of editor, please connect me with them. And this keeps on happening forever, constantly. Really, all kind of soup, right? Like all kind of people start